everyone. Online class 10th, subject SST, chapter 6, part 4. Tsunami disaster. Tsunami आपदा. Earthquake eruption from a volcano cause a sudden disturbances in the base of the ocean, causing abrupt displacement of oceanic water. Consequently, very high waves are produced. These are called tsunami or earthquake affected oceanic waves. सुनामी आपदा भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप समुद्री जल में ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं। इन्हें सुनामी या भूकंपी समुद्र लहरें कहा जाता है। Normally, only one high wave is produced, and in due course, chain of waves appear on the sea. The speed on the waves is slow in slow sea and is high in deep sea. In the deep sea, length of the tsunami waves is more and the height is less. On the slow sea, source the waves can be 15 meters high or even more. This results into great disaster on the coastal area. सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंगें ही पैदा होती हैं, परंतु कालांतर में जल तरंगों का एक श्रृंखला बन जाती है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। जल तरंग की गति उथले समुद्र से कम और गहरे समुद्र में ज़्यादा होती है। गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम। उथले समुद्र में किनारों पर इन लहरों की ऊंचाई 15 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। इससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस होता है। कॉजेस ऑफ सुनामी डिसास्टर। सुनामी आपदा के कारण द सी वाटर इज नेवर क्लेम मोमेंट्स इन द सी वाटर इज ए कॉमन phenomenon. Earthquake and volcano when appear near the sea area in cause to tsunami disaster when the process of volcanic eruption and earthquake takes place in the base of the sea. Then the movements in the sea water increase. As a result of this, high waves are produced in the sea water, which are in turn responsible for loss of lives and property. सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल कभी भी शांत नहीं रहता है। समुद्री जल में हलचल होना स्वाभाविक है। भूकंप और ज्वालामुखी का समुद्र क्षेत्रों में आना ही सुनामी आपदा का प्रमुख कारण है। जब समुद्री क्षेत्रों के धरातल में अचानक ज्वालामुखी या भूकंप का उद्भेदन की क्रिया होती है तो समुद्री जल में गतिशीलता बढ़ती है और जिसके कारण समुद्री जल में ऊंची तरंगें उत्पन्न होती हैं जो जनहानि और संपदा विनाश के कारण बनती है। सुनामी प्रोन एरियाज। सुनामी आपदा के क्षेत्र। कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर prone to tsunami. These areas are particularly Pacific Ocean coast, Alaska, Japan, Philippines, and Indonesia, Malaysia, etc. of Southeast Asia and Indian Ocean coast, Myanmar, Sri Lanka, and India. सुनामी आपदा के क्षेत्र विश्व में समुद्री तटीय क्षेत्र सुनामी आपदा का प्रभाव क्षेत्र है। सुनामी आपदा के क्षेत्रों में मुख्यतः प्रशांत महासागर तट, अलास्का, जापान, फिलीपीन, दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया आदि आते हैं तथा हिंद महासागरीय तट, म्यांमार, श्रीलंका और भारत में सम्मिलित हैं। इफेक्ट्स ऑफ सुनामी डिसास्टर। सुनामी आपदा के प्रभाव। सुनामी वेव्स ऑन रीचिंग द sea coast release a very large quantum of energy. Constantly, the sea water enter the coastal areas rapidly and devastates the ports, cities, towns,
building and human habitation. Normally, the density of population near sea source is high, and these places are the centers of many types of human activity. The tsunamis cause great harm to these areas in corruption or to other disaster. The tsunami waves occurred in December 2004 took a toll of 5 lakh people. More than 3 lakh people of India alone lost their lives in the tsunami occurred on 26 December 2004. As compared to other disasters, it is difficult to minimize the effect of tsunami. It is difficult for a country to face a disaster like tsunami on its own, and efforts at international level are necessary to face such a disaster. सुनामी आपदा के प्रभाव समुद्री तट पर पहुंचने के पश्चात सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ती हैं। इससे समुद्र में जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाहों, शहर, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह कर जाता है। समुद्री तट पर जनसंख्या का घनत्व सघन बसाव होता है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक नुकसान पहुंचाती है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है। किसी अकेले देश में या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना भी आसान नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास आवश्यक हो जाते हैं। भारत में 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी से 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। मेसर्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सुनामी। सुनामी आपदा से बचाव के उपाय। As already said, it is a very severe disaster which occurs rapidly, causing harm to lives and property, and the whole social fabric is disturbed. By developing a system of tsunami warning, the fishermen and ships can be saved. सुनामी आपदा से बचाव के उपाय। सुनामी अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में तीव्रता से घटित होती है। इसमें बड़े पैमाने पर जन धन की हानि तथा सामाजिक तंत्र छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सुनामी चेतावनी तंत्र विकसित करके समुद्र तटीय क्षेत्रों में मछुआरों एवं समुद्री पोतों की रक्षा की जा सकती है। मैन मेड डिसास्टर, मानवकृत आपदाएं। एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिसास्टर, आणविक, जैविक एवं रासायनिक आपदा। These are the times of science and technology. Scientific and technology development have made the life of man happy and prosperous. आज का युग विज्ञान का है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखी व समृद्धिशाली बनाया है। लीकेज ऑफ केमिकल गैस, रासायनिक गैस रिसाव। द भोपाल गैस ट्रेजेडी occurred in the midnight of 2 and 3 December 1984 is the biggest industrial chemical tragedy. It was the result of a technological blunder. In this tragedy, hydrogen cyanide and other products, together with 45 tons of methyl isonide (MIC), a highly poisonous gas, leaked from the pesticides plant of Union Carbide Bhopal in the midnight. It took a toll of about 3,600 lives and many more developed severe health problems. रासायनिक गैस रिसाव 2-3 दिसंबर 1984 भोपाल की घटने वाली अभी तक की सबसे विनाशकारी औद्योगिकी रासायनिक आपदा है। यह त्रासदी एक प्रौद्योगिकी घटना का परिणाम है जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अभिकृत उत्पादों सहित 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक अत्यंत जहरीली गैस यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से रात लगभग 12 बजे रिसी और हवा के साथ बह गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें लगभग 3600 लोग मरे और अनेक रोगग्रस्त हो गए। Another severest tragedy of the world was dropping of atomic bomb by America on Hiroshima and Nagasaki on Japan during the Second World War.
द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा परमाणु बमों का उपयोग किया जाना विश्व इतिहास का भीषणतम ट्रेजेडी है। Attack of pest on crops diseases caused by insects and bacteria like plague, viral attack, bird flu, dengue, etc. are bioattack. Suitable protective measures are necessary in respect of these diseases also. टिड्डा दल के आक्रमण, कीटों द्वारा फैलने वाले रोग जैसे प्लेग, वायरल संक्रमक, बर्ड फ्लू, डेंगू आदि जैविक आपदाएं हैं। इससे बचने के लिए भी उपाय करना आवश्यक है। इंडस्ट्रियल एंड केमिकल डिसास्टर आर मैन रिलेटेड ट्रेजेडीज दिस कैन बी caused abruptly without any warning. Chemical leakage can be caused by human mistake, technological flaws और नेचुरल रिलेटेड। औद्योगिक व रासायनिक आपदाएं मानव प्रदत्त आपदाएं हैं। इसकी शुरुआत बड़ी तेजी से बिना किसी चेतावनी के हो सकती है। रासायनिक रिसव मानवीय गलती, प्रयोग की खराबी और प्राकृतिक क्रियाकलापों से भी हो सकता है। इफेक्ट्स प्रभाव The atomic, biological and chemical disaster might cause harm to the external or internal parts of the body. This disaster might affect the heart and brain and make the body disbelied permanently. The chemicals, when mixed with water, air, and land, it pollutes the atmosphere, and as a result, crop, cattle, fish, etc. Ether die और their development is retarded. आणविक, जैविक और रासायनिक आपदा से शरीर का बाहर एवं आंतरिक भाग प्रभावित हो सकता है। रासायनिक आपदा हृदय और मस्तिष्क इत्यादि को प्रभावित करते हुए ये शरीर को हमेशा के लिए पंगु बना सकती है। रसायनों के जल, वायु और तथा भूमि के साथ मिलने एवं पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तथा इसके प्रभाव से फसल, पशु, मछलियाँ तथा अन्य जीव मरने लगते हैं या उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। मेसर्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव का कम करने के संभावित उपाय। जनरल पब्लिक शुड बी एडुकेटेड एज टू हाउ हार्मफुल chemicals should be used and stored, and if by mistake they come in contact with any body part, what action should be taken to nullify that effects. खतरनाक रसायनों के उपयोग, भंडारण तथा बचाव के तरीके से संबंधित जानकारी भाषा सरल में आम नागरिक तक पहुंचाना चाहिए। Human habitations, residential areas should be located away from industrial areas, and in between these two areas there should be a green belt. रिहायशी क्षेत्रों में औद्योगिकी क्षेत्र से अलग एवं दूर रखा जाना चाहिए। औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों के मध्य हरित पट्टी होना चाहिए। Mock drills should be organized from time to time to face such climates properly. दुर्घटना की स्थिति में मुकाबला करने की समझ विकसित करने हेतु समय पर नकली अभ्यास मॉक ड्रिल करना चाहिए। वार्निंग सिस्टम फॉर फायर फाइटिंग एंड अदर सच क्लाइमेट्स शुड बी इम्प्रूव्ड। अग्निरोधी चेतावनी प्रणाली में सुधार करना चाहिए। स्टोरेज ऑफ पॉइजनस केमिकल्स शुड बी डन ओनली अप टू ए पार्टिकुलर लिमिट। जहरीले पदार्थ के भंडार की क्षमता सीमित हो ही रखा जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस एंड सेफ्टी लॉज शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। उद्योगों के लिए बीमा और सुरक्षा संबंधी कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। बम एक्सप्लोजन, बम विस्फोट। इन मैनी केसेस एक्सप्लोसिव are put on road, public places, government transport and other such places. These days the mode of car bombs is used. Normally flowing safety measures are necessary. अनेक मामलों में विस्फोटक सामग्री सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी परिवहन जैसे अप्रत्याशित स्थानों में रखी जाती है। वर्तमान में कार बमों में वृद्धि हो रही है। इससे सुरक्षा के निम्न उपाय हैं।
If some packet of think is found and it appears doubtful, then proper care should be taken and it should not be touched. Matter should be reported to the police immediately. यदि कहीं कोई पैकेट नज़र आता है तो संदेह होता है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अतः उसे छूना नहीं चाहिए. One should never go near a thing which arouses doubt and should not allow other also to do so. स्थगित वस्तुओं के पास ना तो स्वयं जाना चाहिए ना ही दूसरों को जाने देना चाहिए. Whenever one comes across any of such situation, police should be informed immediately. पुलिस को सूचित करना चाहिए. जनरल ह्यूमन डिसास्टर, फायर, रोड एक्सीडेंट्स, एयर क्रैश एक्सेट्रा एंड एपिडेमिक्स. सामान्य मानवीय आपदाएं, आग, सड़क व हवाई घटनाएं एवं महामारी. फायर, आग. फायर इज वेरी डेंजरस. नंबर्स ऑफ डेथ caused by fire are much more than the total numbers of death caused by winds, earthquakes, floods, etc. There are many reasons of occurring fire like electrical heaters, accidents, wheel cooking food, wiring, necked electrical wire and short circuits, fires in the garbage, explosive, etc. आग बहुत खतरनाक होती है. चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि सभी प्राकृतिक आपदा को मिलाकर जितने लोगों की मृत्यु होती है उससे कहीं अधिक लोग आग से जलकर मरते हैं. आग लगने के कई कारण होते हैं. बिजली के हीटर, खाना पकाते समय होने वाली दुर्घटनाएं, बिजली की वायरिंग क्षमता से अधिक भार, कमजोर वायरिंग, कूड़ा करकट में लगी आग, आगजनी, बारूदी पदार्थ आदि. प्रिवेशंस ऑफ डोमेस्टिक फायर. घर में आग की रोकथाम. सम बेसिक टिप आर एस अंडर. आग से बचाव की कुछ बुनियादी युक्तियां निम्नानुसार हैं. बेसिक रूल्स टू प्रिवेंट सेव फ्रॉम फायर एंड एक्सिट डोर्स शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एंड फॉलोड. आग से बचाव के बुनियादी नियम और बाहर जाने के रास्ता सदैव में ध्यान रखें. डू नॉट कीप हाईली इन्फ्लेमेबल मैटर इन द हाउस. घर के भीतर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ न रखें. ऑलवेज कीप ए फायर extinguisher at home and learn to use it and teach it to other members of the family also. घर में एक अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें और इस्तेमाल करना सीखें. घर में प्रत्येक सदस्य को इसके इस्तेमाल का तरीका सिखा दें. When you go out, please switch off all the gas and electrical gadgets. जब घर के बाहर जाएं तो बिजली और गैस के सभी उपकरण बंद करके जाएं. Do not put so many electrical gadgets in one socket. एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण न लगवाएं. Keep match boxes out of reach of children and do not allow anyone to smoke in the house. माचिस को बच्चों के हाथ न लगने दें और घर के भीतर किसी भी बीड़ी सिगरेट न पीने दें. Do not block the entrance door of the house by putting almirah or any furniture against it. अलमारी अथवा अन्य फर्नीचर लगाकर घर या कमरे का प्रवेश मार्ग बंद ना करें. Do try to know the region of fire and take suitable action. आग लगने का जानने और आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करें. In case of fire, call the fire brigade immediately. Tell them your address, type of fire and place. आग लगने पर दमकल विभाग को बुलाएं. उन्हें अपने पता और आग की प्रकृति और स्थान की सूचना दें. The passages where smoke is there, try to crawl
on the ground because smoke is always less near the floor. जिस गलियारे में धुआं हो वहाँ हाथ पैरों या पेट के बल रेंगने का प्रयास करें क्योंकि फर्श पर धुआं कम होता है. There should be 2 exit doors in the house. Do an exercise of going out from these doors twice in an year as per your plan. अपने घर के बाहर निकलने में कम से कम 2 रास्ते तय करें. वर्ष में कम से कम 2 बार घर से बाहर निकलने की अपनी योजना का अभ्यास करें. Do not store inflammable liquids, gas cylinders and other such risky materials in the house. घर में तरल पदार्थों, रसायनों, गैस सिलेंडरों जैसी जोखिमपूर्ण सामग्री का भंडारण न करें. थैंक यू.